মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার কর্মসূচিতে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে হরিশ্চন্দ্রপুর রাহুল গান্ধী। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবরে চোখ রাখবো। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় বিহার থেকে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে ঢুকতেই রাহুল গান্ধীর গাড়িতে ঢিল ছুড়ে কাচ ভাঙার অভিযোগ তুলল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বুধবার সকাল 11:30 নাগাদ রাহুল গান্ধীর যাত্রার সময় এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং রাহুল গান্ধীর গাড়িতে ঢিল ছুড়ে কাচ ভাঙার অভিযোগ করেছেন। যদিও এ ব্যাপারে তৃণমূল নেতৃত্ব সাফ জানিয়ে দিয়েছে, রাহুল গান্ধীর কাচ ভাঙার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে এরকম কিছু হয়নি। এদিন দুপুরে রতুয়া থানার দেবীপুর এলাকায় একটি খেলার মাঠেই ক্যাম্প করে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে 11টা নাগাদ বিহার থেকে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার কর্মসূচি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দিল্লি দেওয়ানগঞ্জ এলাকায় রাহুল গান্ধীর গাড়ি পৌঁছতেই সেখানে ঢিল ছুঁড়ে কাচ ভাঙার অভিযোগ তোলে কংগ্রেস। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব রীতিমতো প্রশাসনের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, হরিশ্চন্দ্রপুরে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু হয় 4 চাকার একটি গাড়িতে। সেই সময় সাংসদ রাহুল গান্ধী ছিলেন। তখনই কাচ ভাঙার ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, ভিড়ের মধ্যে পেছন থেকে কেউ বা কারা ঢিল ছুঁড়ে গাড়ির কাচ ভেঙেছে। সাংসদ অধীর চৌধুরী আরও বলেন, আমরা প্রথম থেকে রাহুল গান্ধীর বিশ্রামের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা এলাকায় সেচ দপ্তরের গেস্ট হাউস নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম, কিন্তু প্রশাসনের অসহযোগিতার জন্য সেই গেস্ট হাউস দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে রতুয়ার দেবীপুর এলাকায় একটি খেলার মাঠে রাহুল গান্ধীর বিশ্রামের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই এমন ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও আমরা অভিযোগ জানিয়েছি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে 11:30 থেকে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর হয়ে শুরু হয়েছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। এই কর্মসূচি হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে রতুয়া, পুখুরিয়া, তারপর ইংরেজ বাজারের শোভননগর হয়ে মালদা শহরে পৌঁছবে। রাতে ইংরেজ বাজার শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে সংক্ষিপ্ত সভার আয়োজন করেছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। বুধবার রাতে কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের সুজাপুর হাতিমারি মাঠে রাহুল গান্ধীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালদা থেকে আমজাদ আলীর রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ টুডে 24। কুচবিহার থেকে শুরু হয়েছে সর্বত্র অসহযোগিতা। রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রা যাতে ব্যর্থ হয় তার জন্য চেষ্টা করে কিছু নয়। পদে পদে নানা প্রতিবন্ধকতা। এত বড় একটা জাতীয় নেতা বিহারে বক্তৃতা দিয়ে এলো, পশ্চিমবঙ্গে বক্তৃতা দেওয়ার তার কোনো অধিকার নেই। নানা বাহানায় তার বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ তাকে কেড়ে নিচ্ছে। অথচ এখানকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তার পদযাত্রা অসুবিধা নেই, তার বক্তৃতা অসুবিধা নেই, তার কোনো কিছুতে অসুবিধা নেই, সব অসুবিধা রাহুল গান্ধী। পদে সিকিউরিটি কি পাচ্ছেন? অত বড় একটা যে জায়গা, কোনো পুলিশ দেখছেন যে এত হাজার হাজার মানুষের জড়ো হয়েছে, পুলিশ দেখতে পাচ্ছেন কেন? প্রশাসন চাইছে, সরকার চাইছে এমন কিছু হোক যাতে রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা নিয়ে একটা বদনাম তৈরি হয়, রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা হয়। সেই লক্ষ্যে প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে অসহযোগিতা করছে। রাহুল গান্ধীর যে স্টেজে আজকে বক্তৃতা দেওয়ার মানে পৌঁছানোর কথা ছিল, সেটা পিডব্লিউডি স্টেজ দেখে গেছে, সেটা নড়ছে। সেখানটায় রাহুল গান্ধী যারা সিকিউরিটি তারা বলছে এই স্টেজ যথেষ্ট নয়, তাই তাকে বাসের মাথায় উঠে তাকে পতাকা হস্তান্তর করতে। প্রশ্ন, আজকে রাহুল উদ্যানভোজন করার কথা ছিল এখানকার ইরিগেশন বাংলোয়, সেই পারমিশন আমাদের দেওয়া হয়নি, তাই আমরা ফাঁকা মাঠ এসেছি। এই মাঠে কোনো প্রোটেকশন আছে? পুলিশের কোনো সহযোগিতা আছে? চাইছে পুলিশ যেখানে একটা ক্যাব আসুক। রাহুল গান্ধীর মতন ব্যক্তিত্ব, তারা যেখানে যাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়, সেখানে আছড়ে পড়বে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে সমস্ত অ্যাটেনশন আমার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, সে কোথায় মালদায় হাঁটবে তার জন্য তারা ব্যস্ত, সে কোথায় ঘুরবে তার জন্য ব্যস্ত। বাকি এখানে কোনো ব্যবস্থা নেই। বাকি সব মরো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তার জন্য সব নজর দিয়ে তাকে খুশি করো। একজনকে খুশি করো, বাকি সব মরো, কিছু যায় আসে। पीछे से किसी ने हो सकता कोई भैया भीड़ भाड़ में किसी ने पत्थर मारे हो। सरकार ये सुबह की जो पुलिस बल है, ये पुलिस नाम लिखी कर रहे, अनदेखी कर रहे।
अनदेखी के चलती बहुत सारे घटना घट सकती है। ये तो छोटी मोटी कोई घटना घटी है, कोई पत्थर मारे हैं, बहुत बड़ी कुछ भी घट सकता है। राहुल गांधी जी जैसे एक हस्ती, ये हाई प्रोटेक्टिव, ये हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव एक हमारे पॉलिटिकल लीडर, नेशनल लीडर कांग्रेस पार्टी, अगर उनकी तरह इस तरीके की मतलब अनदेखी किया जाते हैं। आप खुद देख रहे हैं, हम मध्याह्न भोजन के लिए एक जगह चुने थे, बाकायदा वो जगह एक सरकार, सूबे की सरकार की बांग्ला था इरिगेशन की, हमें ये इजाजत नहीं दिए गए। ये खाली मैदान में आने पड़े राहुल जी को। राहुल जी उधर है, चारों तरफ देखो, कोई यहाँ सिक्योरिटी की इंतजाम है, कोई इंतजामियत नहीं है। वो चाहते कुछ ना कुछ घटना घटे, बदनाम हो राहुल जी की बस। তারা এসেছে, কিন্তু এই সমর্থন কি ভোট বাক্সে আসবে? আমি ঘটোৎকার নই, যখন ভোট হবে তখন বুঝতে পারবে। পুলিশ অভিযোগ জানাবেন আছে আপনাদের? পুলিশকে অভিযোগ জানি কি করবো, এখানকার পুলিশ আন্ধা পুলিশ। এখানে मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। सभी जगहों में छोटे मोटे ऐसे चीजें होती हैं, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पोस्टर फाड़े गए थे जलपाईगुड़ी में, आज शीशा टूटा गया है, ये चलता रहता है। इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं, इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए हैं, मैं उनको साफ कह देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना उनकी भी प्राथमिकता है। इतनी ही प्राथमिकता है उनके लिए जितना कि हमारे लिए। ये तो पहले बोल चुके थे, छोड़ दिए वो जगह। बाबा एक कदम तो करने लगे। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन, मैं आपको एक चीज बताऊं, बार बार ये सवाल उठता है, इंडिया और एनडीए के बीच में क्या फर्क है। मैं कन्हैया की भाषा इस्तेमाल करता हूँ। इंडिया में 2 आई है, वो इंडिया से वो 2 आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। 2 आई क्या है? इंसाफ और इंसानियत। इंसाफ और इंसानियत को इंडिया से हटाइए तो वो एनडीए बन जाता है। तृणमूल इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। तृणमूल कांग्रेस इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए, ये किसी राज्य सरकार या विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे मतभेद होते रहते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों से। एक मिनट, खत्म तो करने दो यार, खत्म तो करने दो। हमारे मतभेद हो सकते हैं और हैं, मैं उससे भागने वाला नहीं हूँ, पर इंडिया गठबंधन सभी को याद रखना चाहिए, कांग्रेस वासियों को भी याद रखना चाहिए। सर मालदा में, और सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना है। राज्य सरकार में, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, वो इंडिया गठबंधन से उससे कोई लेना देना नहीं। मालदा में सीएम ने कहा है बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी काफी है। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी अकेला ही काफी है, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ना है। ममता बनर्जी बहुत सम्मानित नेता है हमारे देश के। उनका ट्रेनिंग कांग्रेस में ही हुआ, मैंने उनको कांग्रेस में भी देखा। हम ममता जी से प्रेरणा लेते हैं। मैं जानता हूँ खड़गे जी और राहुल जी, सोनिया जी सभी उनका बड़ा सम्मान और आदर देते हैं। खड़गे जी ने उनसे बात की, खड़गे जी ने 3 दिन कोशिश की नीतीश कुमार से फोन पर लगाने में, वो सफल नहीं हुए। खड़गे जी और ममता जी के बीच में सीधा संपर्क हुआ फोन पर। ममता जी ने कहा है, मैंने पढ़ा है कि 42 सीटों पर वो लड़ेगी, पर
मेरा ये समझ है, जब हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में लेन देन होता है। गठबंधन की सफलता जो है तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे को सम्मानित तरीके से एक फॉर्मूला ढूंढ लें। एक तरफा फॉर्मूला नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला है, कोई और पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो मैं कुछ पब्लिकली नहीं कहूंगा, और ये सीट शेयरिंग की बात बॉल बाय बॉल कमेंट्री देकर नहीं होता, बैठकर हर एक सीट पर बातचीत होती है, लेन देन होता है। हमें कुछ लेना है, हमें देना भी है, और हम ये भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। इसका एक विशेष महत्व है पश्चिम बंगाल के राजनीति में। इसीलिए इंडिया गठबंधन के कौन निर्माता है? इंडिया गठबंधन के निर्माता ममता बनर्जी हैं, खड़गे साहब हैं, नीतीश कुमार थे एक जमाने में, पहले अभी तो पलटी मार गए। तो इंडिया गठबंधन 18 पार्टी पहले मिले पटना में 23 जून को, बाद में 28 पार्टी मिले बेंगलुरु में और मुंबई में, और हमने एक होकर आम सहमति बनाई कि ये रास्ता है हमारे लिए बीजेपी को हराने के लिए। ममता जी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में और सारे देश में। ममता जी भी वही चाहती है। तो जब मंजिल एक है, अलग अलग रास्ते होते हैं। रास्ते आज मिले प्री पोल होगा या पोस्ट पोल होगा? अब जो हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, मैं आपको ऋग्वेद की बात सुनाता हूँ। ऋग्वेद को याद दिलाता हूँ। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत्य, एक ही सच है, बीजेपी को हराना है। विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में उसको प्रकट करते हैं। सर, एक टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। अभी इसी सवाल को लेकर घुमा फिरा कर नहीं सर, आखिरकार जो जमीनी मुद्दा है, आखिरकार एक सवाल का नीति कहाँ गया? सर, एक क्रोनोलॉजी, पहले तो पोस्टर फाड़ा गया, ममता जी इज फॉलोइंग दैट रूट जहाँ पे राहुल जी कि हो सकता है कुछ लोग शैतानी करेंगे ताकि आपके राज्य सरकार पर कुछ बदनाम हो। Sir, what about the policeman? What about the deployment of policemen by the state government? As CM is there, they are deploying thousands of police persons in CM their security. What about the Rahul Gandhi security? भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगा और राहुल गांधी जी की सुरक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। Sir, one last question, sir. Sir, Nitish Kumar said that I had opposed the name of India. Sir, कन्हैया जी, नीतीश कुमार, Sir, Nitish Kumar today said that I had opposed a different name. But the opposition parties did not listen to me. I was not in favor of the name India. बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी मौजूद था, इस पर काफी लंबी बहस हुई, अलग अलग विचार हुए। देखिए, जब 28 पार्टियां होती हैं, 28 पार्टी टेबल में बैठे हुए हैं, बातचीत होती है, कभी सर्वसम्मति संभव नहीं होता, आम सहमति बनाई जाती है, और इंडिया नाम पर आम सहमति बनाई गई। सर्वसम्मति माने यूनानिमिटी, आम सहमति माने कंसेंसस, और उस आम सहमति के एक अंग, महत्वपूर्ण अंग नीतीश कुमार जी थे। अभी वो कुछ भी बोले, उनकी पलटी को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। वो वापस बीजेपी के गोद में जाके बैठे हुए हैं, और जो इनका नीतीश कुमार जी का कोई जवाब नहीं। किसी भी राजनीति में ये गिरगिट भी इतने जल्दी अपने रंग नहीं बदलते हैं जितना जल्दी नीतीश कुमार जी बदलते रहते हैं, और उसको
जस्टिफाई करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। इनको अभी कोई गंभीरता से नहीं किया। लेकिन दादा वापस आ गई आप? ममता दीदी ने फोटो देने गई थी ना, एक ही क्वेश्चन है कि पीसीसी वर्कर्स जो है, जो मौत जिसका हो गया है पंचायत इलेक्शन के बाद, को उन लोगों को न्याय कब मिलेगा? क्योंकि वो तो बोल रही है कि ममता दी यहाँ पे, ये आप बताइए, आप बताइए। पंचायत का इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, तो जहाँ पे तो पीसीसी के बहुत सारे कार्यकर्ता अराउंड 30-35 उन लोगों का मौत हो गया, और आरोप है यहाँ के जो सत्ते में है तृणमूल स्टेट कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के के खिलाफ, खिलाफ, वो ममता दीदी पूछ के रहे खिलाफ उन हैं लोगों का अगर सवाल है गठबंधन ना। होगा, अगर घटक दल बन के वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस रहेगा, और कांग्रेस अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को आपसे बता, पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे, राहुल गांधी से भी पूछ रहे पूछ रहे हैं। हैं। ये मतलब पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पीसीसी का वर्कर पहले इनसे पूछेगा कि आपसे पूछने चला जाएगा? ये लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों राजस्थान में हमारी सरकार थी, हाँ बोलो। देश की पहली सरकार है जिसने गिग वर्कर पे कानून पास किया है। तो इसका तो जवाब हम यही देंगे कि इस देश के युवा हमसे जुड़े। हमने जो भी नंबर दिया है उसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हम जुड़े, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में ईमानदारी से संघर्ष करेंगे युवाओं के रोजगार के लिए। और जो मजदूर हैं, चाहे वो गिग वर्कर हो, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, संगठित क्षेत्र के मजदूर हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात हो, ये तमाम कल्याणकारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ वादा नहीं कर रहे हैं। जहां हमारी सरकार आई है, गिग वर्कर पे हमने जो है कानून बनाया है। और एक बात और उसमें ऐड कर दूं, अभी 1 साल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही गिग वर्करों का प्रतिनिधि मंडल राहुल जी से आकर के मिला, और फिर हमारी राजस्थान की सरकार ने इस पर कानून पास किया। मैं बता दूं आपको, मोदी सरकार क्या कर रही है, श्रमिकों को गैग कर रही है, ट्रेड यूनियन का गैग हो रहा है। पर यहाँ रोजगार गिग इकोनॉमी में आ रहा है। गिग श्रमिक जो है, जो आपने गिनाया, लाखों लोग गिग श्रमिक, गिग अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। बिल्कुल कोई भी आंकड़ा लीजिए वो कम है। तो राहुल जी ने कहा है